علیکم ناظرین، خبر و اخبار میں میں سیدہ زبورہ آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ رمضان کریم کی دلی اور پرخلوص مبارکباد۔ آج کی اہم ترین سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ ملک میں جمہوریت کو کچلنے والی طاقتیں سرگرم، ایمرجنسی کا اندیشہ، بی جے پی لیڈر اڈوانی کا بیان۔ آدھار اور پی ڈی ایف اسکیم کی پیش رفت کا جائزہ، وزیر داخلہ اور فائنانس منسٹر کے ساتھ وزیر اعظم کا اجلاس۔ گجرات میں مقامی انتخابات میں لازمی رائے دہی کا تعارف۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کی پنجاب کے کسانوں سے ملاقات۔ سوریہ نمسکار اور اوم یوگا کی سرکاری تقاریب میں شامل نہیں، حکومت کی وضاحت۔ امریکہ میں مسلمانوں کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے امریکی مسلمانوں کی تحریک۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں تارکین وطن کا بڑھتا ہوا رجحان۔ پاکستانی حکومت کا ملک بھر میں اذان کا ایک ہی وقت مقرر کرنے کا فیصلہ۔ افغان سپریم کورٹ میں خاتون جج کی تقرری پر اعتراض۔ روس سے پاکستان کو جنگی ہیلی کاپٹروں کا حصول۔ کرشنا ندی کے پانی کی تقسیم پر آندھرا اور تلنگانہ کے درمیان اتفاق۔ چندرا بابو نائیڈو اور گورنر نرسمہن کے درمیان بڑھتی ہوئی دوری۔ رمضان میں مسجدوں کی مرمت اور خصوصی نمازوں کے اہتمام کے لیے حکومت آندھرا پردیش کی جانب سے 2.5 کروڑ روپے دینے کا اعلان۔ کھیل خبر و اخبار۔ پہلے ون ڈے میچ میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں انڈیا کو کراری شکست۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2-2 سے سیریز برابر۔ موسم خبر و اخبار۔ ضلع کڑپا میں درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس، درجہ رطوبت 25 ڈگری سیلسیس، بارش کے آثار 50%، بادل چھائے رہیں گے۔ سرخیاں ختم ہوئی۔ ملک میں جمہوریت کو کچلنے والی طاقتیں سرگرم، ایمرجنسی کا اندیشہ، بی جے پی لیڈر اڈوانی کا بیان۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر ایل کے اڈوانی نے یہ کہہ کر سیاسی حلقوں میں سنسنی پھیلا دی کہ ملک میں جمہوریت کو کچلنے والی طاقتیں سرگرم ہیں۔ ان کے اس بیان کو وزیر اعظم مودی پر راست حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ حزب مخالف جماعتوں نے بھی ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے اندیشے کا اظہار کیا ہے۔ 40 برس پہلے 1975 میں اندرا گاندھی کے دور حکومت میں ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی اور وزیر اعظم نریندر مودی اسی راستے پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ Where emergency is not far. آدھار اور پی ڈی ایف اسکیم کی پیش رفت کا جائزہ، وزیر داخلہ اور فائنانس منسٹر کے ساتھ وزیر اعظم کا اجلاس۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے آدھار یو ڈی آئی اور راست منفعت منتقلی ڈی بی ٹی اسکیم کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور یو ڈی آئی اور ڈی بی ٹی سے متعلق تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ఆధార్ దరఖాస్తుం के फैलाव की हिदायत दी। ఆదోని టౌన్లో ఉన్నటువంటి డీలర్స్ సుమారు 62 పీపుల్ ఉన్నారు। ఆ 62 డీలర్స్ సంబంధించినటువంటి డేటాబేస్ అంతా కూడా మేము సాఫ్ట్వేర్లో రీరన్ చేస్తే కొద్దిగా ఫ్రాడ్లెంట్ డేటా షాప్ వారీగా తీయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా गुजरात में मुकामी इंतखाबात में लाजमी राय दही का तारुफ। गुजरात में आइंदा मुकामी इंतखाबात के पेश नज़र लाजमी राय दही को मुतारुफ किया जाएगा और वोट न देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। चीफ मिनिस्टर गुजरात आनंदी बेन पटेल ने ये बात कही।
कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की पंजाब के किसानों से मुलाकात। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने पंजाब में खुदकुशी करने वाले किसान सरजीत सिंह के खानदान के लोगों से मुलाकात की। 60 साला सरजीत सिंह ने 10 जून को जहर खाकर खुदकुशी की थी। सूर्य नमस्कार और ओम योगा की सरकारी तकारीब में शामिल नहीं, हुकूमत की वजाहत। हुकूमत ने बैनुल अक़वामी यौम योगा की सरकारी तकारीब के दौरान अपने फैसले का ऐलान किया कि योगा के आसनों में सूर्य नमस्कार और ओम का जपना शामिल नहीं है। मुस्लिम हलकों की जानिब से सूर्य नमस्कार और ओम की सख्त मुखालफत की गई थी। हुकूमत ने अब इनके अंदेशों को दूर कर दिया है। संहिता से कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं। ये एक फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेडिशनल एक्सरसाइज, एक परंपरागत व्यायाम है। तो इसमें सूर्य नमस्कार नाम की कोई योग की क्रिया न वेदों में है, न योग के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, भारतीय षड दर्शन में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में। अमेरिका में मुसलमानों की सही तस्वीर पेश करने के लिए अमरीकी मुसलमानों की तहरीक। इन दिनों अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के दारुल हुकूमत में बड़े बड़े इश्तिहारात लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है, क्या आप जवाबात की तलाश में हैं? इस्लाम से रुजू कीजिए। अमेरिका में आबाद मुसलमानों ने इस्लाम का सही रुख पेश करने के मकसद से ये तरीका अपनाया है। पाकिस्तानी हुकूमत का मुल्क भर में अज़ां का एक ही वक्त मुकर्रर करने का फैसला। पाकिस्तान में हुकूमत ने मुल्क भर में अज़ां का एक ही वक्त मुकर्रर करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने बताया, मजहबी इस्लाहात की तरफ पाकिस्तान का ये इक़दाम है। अल्लाह के फज़ल करम से 2 महीने के अंदर माए कराम ने जो आपस में मुशावरत करके और आपस में शरई लिहाज से सारी चीजों को देखकर ये फैसला किया है कि इस्लामाबाद में अजान का भी एक वक्त होगा और जमात का भी एक वक्त होगा। अफगान सुप्रीम कोर्ट में खातून जज की तकर्रुरी पर एतराज। अफगान में इस्लामी पैनल के अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक खातून जज को नामजद करने के खिलाफ एहतजाज किया है। तालिबान ने सख्ती के साथ खवातीन के काम करने, स्कूल जाने और औरतों के घर से बाहर जाने पर पाबंदियां आयद की थी। रूस से पाकिस्तान को जंगी हेलीकॉप्टरों का हुसूल। रूस पाकिस्तान को जंगी हेलीकॉप्टर फराहम करेगा। इस सिलसिले में रूस और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकिरात जारी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास कई I-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को फराहम किए थे। कृष्णा नदी के पानी की तकसीम पर आंध्रा और तेलंगाना के दरमियान इत्तेफाक। कृष्णा नदी के पानी की तकसीम पर हुकूमत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान इत्तेफाक हुआ है। ताहम मुख्तलिफ ज़रई मंसूबों पर दोनों हुकूमतों के दरमियान इख्तिलाफात पाए जाते हैं और लफ्जी जंग जारी है। चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर नरसिम्हन के दरमियान बढ़ती हुई दूरी। रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और ESL नरसिम्हन के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं। गवर्नर 2014 तक अपने मनसब पर बरकरार रहेंगे तो तेलुगु देशम के अराकीन और उजरा के दरमियान तलखी बढ़ सकती है और गवर्नर पर ये इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि दस्तूर का मुहाफिज खुद दस्तूर की पासदारी नहीं कर रहा है। रमजान में मस्जिदों की मरम्मत और खुसूसी नमाजों के एहतमाम के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से 2.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। माह रमजान के पेश नजर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत और वक्फ बोर्ड के ज़ेरे निगरानी मसाजिद की मरम्मत और खुसूसी नमाजों के एहतमाम के लिए 2.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।
चंद्रा बाबू नायडू ने मुसलमानों खुसूसन रियासत के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी और वादा किया कि अक़लियत की तरक्की के लिए कदम उठाए जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। मेरे मुसलमान भाई और बहनों को रमजान का पाक महीना मुबारक हो और मैं आप सबको रमजान के आने वाले ईद की पेशगी मुबारकबाद। एमएलए जनाब अमजद बादशाह के हाथों होटल कड़पा फास्ट फूड के शोबे हलीम का इफ्तिताह। कड़पा शहर के मुसलमान भाइयों खेल खबर और अखबार। पहले वनडे मैच में बांग्लादेश के हाथों इंडिया को करारी शिकस्त। पहले वनडे मैच में बांग्लादेश ने इंडिया को 308 का हदफ दिया, जिसका पीछा करते हुए इंडिया 228 पर ढेर हो गई। मुस्तफिजुर रहमान ने 9 ओवरों में 5 विकेट लिए। उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। Going to the next World Cup or the Champions Trophy, but where we need to improve is, the bottom three. Maybe after the first four, 5, 6, and 7, and particularly 6 and 7. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान 2-2 से सीरीज बराबर। 5 वनडे मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 2-2 पर काबिज हैं। एक फैसला कुन मैच दोनों के दरमियान बाकी है।